ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰਾ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਬਨਿਆਈ। ਪ੍ਰਗਟ ਭਈ ਸਗਲੇ ਜੁਗੇ ਅੰਤਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਬਲਿਓ ਚਿਰਾਗ ਅੰਧਿਆਰ ਮਹਿ, ਸਭ ਕਲ ਉਧਰੀ ਇਕ ਨਾਮ ਧਰਮ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਗਲ ਹਰ ਭਵਨ ਮਹਿ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਜ਼ਹਿਰਾ ਜ਼ਹੂਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ, ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਰਦੁ ਆਲਮ ਸ਼ਾਹ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਪੀਰਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਜਗ ਬੌਰਾਨੰ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪਰਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਆਰੰਭਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇ ਦਾਤੇ, ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਚਿੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜ ਤੁੜਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਨੀਲੇ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰ, ਚਿੱਟੇ ਬਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਉੱਚੇ ਦੁਮਾਲੇ ਸੋਹਣੇ ਬਸਤਰ, ਕਲਗੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧਿਆਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਰਮਜ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਸ ਰਮਜ਼ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਮਜ਼ ਰਾਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੋਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਜੋਤ ਦੀ ਉਪਮਾ ਲਈ
ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢੀਏ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਰੀਰ ਨੇ। ਇਕੱਲੇ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਜੋਤ ਨੂੰ ਹੀ ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ। ਉਹੀ ਜੋਤ ਤਾਤੇ ਅੰਗਦ ਭਇਓ, ਤਤ ਸਿਉ ਤਤ ਮਿਲਾਇਓ। ਅੰਗਦ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਅਮਰ ਸਤਿਗੁਰ ਥਿਰ ਕੀਓ। ਉਹੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਮਰਦਾਸ ਅਮਰਤ ਛਤਰ ਗੁਰ ਰਾਮੈ ਦਿਓ। ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸ ਕੇ ਮਥੁਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੈਣ। ਮੂਰਤ ਪੰਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੁਰਖ ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਪਿੱਖੋਂ ਨੈਣ। ਤੇ ਜਦ ਇਹ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਨਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁੱਚਾ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਹੈ। ਜੇ ਸੁੱਚਾ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਨਹੀਂ, ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਜੋਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸਾਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਤ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਸਕਦਾ? ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡੂੰਘੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫੋਕਟ ਕਰਮ, ਨਿਹਚੋ ਕਰਮ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪੱਕੇ ਹੀ ਫੋਕਟ ਕਰਮ ਸੱਚੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਨਾ ਗਿਆਨ, ਨਾ ਧਿਆਨ, ਤੇ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਮ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਾਰ ਜਾਣਾ? ਪਰ ਹਾਂ, ਸਾਰ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਿ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਚਨ। ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਮੀਆਂ ਆਖਣਾ ਵੱਡੇ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਕਹਾ ਹੋ ਮੀਆਂ, ਤੇਰੀ ਕਵਨ ਵਡਾਈ, ਕਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਈ? ਤਾਈਓ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏਕੋ ਜਾਨ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਪਰਮਾਨ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਅਥਾਹ ਅਗਨਤ ਅਤੁਲੈ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕੋ, ਪਰ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰਤਾ ਦਾ ਅੰਤ ਕੌਣ ਪਾਏਗਾ? ਜਿਹਦੀ ਥਾਉ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਉਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਥਾਹ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਗਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਅਗਣਤ ਹੋਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹਨੂੰ ਤੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇੰਨਾ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੀ ਅਤੋਲ, ਫਿਰ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਇਹੀ ਆਖਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੋਭਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਓ, ਜਿਉਂ ਬੁਲਾਵੋ ਤਿਉਂ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਤੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾ ਲਓ, ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਮਾਲ ਦਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਦੋਬੇ ਨੂਨ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਨਾਇਮ ਵ ਨਸੀਰ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਤੇ ਸਿਖਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਆਓ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਤੇ ਆਏ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਸਾਰੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,
वाहिगुरु जी की फतेह। श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे विच बेअंत शब्द ने जेड़े गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी की भी उपमा करते हैं ते जेड़े गुरु जोत की भी उपमा करते हैं। एक शब्द असी एक बचन पढ़ते हैं कि दीख्या आख बुझाया सिफती सच समेओ तिनको क्या उपदेशी है जिन गुर नानक देओ। ये बड़ा कीमती बचन है कि जे ये समझना है ना कि गुरु नानक लई ते आए क्यों है। इहदे विच कोई बचन नहीं ये कीता कि जिन्हों रब ने दिता है उहदी शोभा किवें कीती जाए, पर इस बचन विच ये दसिया कि जिहदे उत्ते गुरु नानक साहब त्रुठे ने उन्होंने भी कोई समझा नहीं सकता। कोई ऐसी शै नहीं है कि जिस शै उत्ते, जिस व्यक्ति, जिस मनुख, जिस जिग्यासू सिख उत्ते गुरु नानक साहब त्रुठ पैण ते कोई उहदे विच खामी कढ लई जाए। दीख्या कहते सिक्ख्यावां, उपदेश। आख बुझाया, बुझाउणा मतलब समझा देना, पूर्ण ऐ दृढ़ कर देना, घड़ देना। किस दे राही? सिफती सच समेओ, वाहिगुरु की सिफत दे नाल अंदर सारा सच भर जाना, सच दे विच रूम रूम भर जाना। किदा? तिनको क्या उपदेसी है जिन गुर नानक देओ। उन्होंने कोई उपदेश नहीं कर सकता जिन्हों गुरु नानक देव जी का उपदेश हिरदे विच वस चुका है। जिस दे हिरदे विच गुरु नानक साहब की सिक्ख्या वस चुकी है उहदे उत्ते किसी का असर नहीं हो सकता, उन्होंने कोई प्रभाव नहीं पा सकता। कोई भी ना जोगी प्रभाव पा सकता है, ना कोई जति, ना कोई जंगम पाउण वाला, ना कोई सती, ना कोई मुला, ना मसाणा। इस धर्म के झूठे पसारे का कोई प्रभाव उत्ते नहीं। इत्थों तक जे कोई सूरमा तेग फड़ के आके उहदे दो भी पाड़ कर दे, उहदे दो टुकड़े भी कर दे, तां भी उन्होंने उपदेश नहीं दिता जा सकता, तां भी वह डोल नहीं सकता कि गुरु नानक साहब का उपदेश इन्ना दृढ़ है। और यही उपदेश नानक गुरु गोबिंद सिंह तक वरत्या। दीख्या आख बुझाया, सिक्ख्यावां गुरु नानक साहब ने रब दियां दित्तियां, सिफत सलाह वाहिगुरु दी दित्ती ते बचन कीता तिनको क्या उपदेसी है जिन गुरु नानक देओ। कौन उपदेश सकता है? क्यों? भाई गुरदास जी ने कहा गुरु नानक साहब जब इस धरती पे आए, प्रगट होए, वो लोग जेड़े गंग बनारस हिंदुआं मुसलमाना मक्का काबा जेड़े कहंदे सी एक कि जां ते बनारस जाके मुक्ति होनी है ते जे सारी उम्र हिंदू हो के गंगा का इशनान नहीं किया तो फिर पापां विच गुड़ुच है तेरा जीवन। ते जेड़े दूसरे सन वो कहंदे कि पश्चिम बल जे सीस नहीं निभाया, जे मक्के की यात्रा नहीं की, जे मक्के ही नहीं गया एक बार भी, जे कीता ही नहीं काबा दे विच जाके सिजदा, तो फिर तेरा जीवन निफल है। गंग बनारस हिंदुआ मुसलमाना मक्का काबा। एक कहते दखण देश दे विच सिर झुका के आओ, उत्थे भगवान वसदा है। एक कहते नहीं पश्चिम विच खुदा दा वस है, उत्थे जाके खुदाई दी प्राप्ति होनी है। खुदा खुदा बोलण वाला बंदा जनेऊ पाउण वाले नूं काफर कहंदा है, ते जिहड़ा जनेऊ पाउण वाला वो सुन्नत करन वाले नूं पापी कहंदा है, वो उन्होंने माड़ा आखदा है। वो कहंदा कि गां खाण वाला माड़ा है, ते वो कहंदा कि सूअर खाउण वाला माड़ा है। दोनों एक दूसरिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ महाराज कहते हक पराया नानका उस सूअर उस गाय। हिंदू कहता है कि तू काफर है क्योंकि तू गां नूं मारदा है, गां पवित्र है साडे लई। ते फिर मुसलमान भी ये कहता अगों कि तू भी पापी है, तू भी काफर है, तू भी तो सूअर नूं मारदा है। पर महाराज कहते गल ये नहीं सूअर ते गां नूं मारन दी, असल गल तो यह है कि जिन्हां विच रब वस रहा तुसीं रब ही नहीं वेख रहे। तुसीं रब वेखो, तुसीं ते हक मार रहे हो दूसरियां दा। जे हक मार के जीवन बतीत कर रहे हो तो फिर महाराज कहते हिंदू वास्ते गां दा कतल है तो मुसलमान वास्ते सूअर दा कतल है। किड्डी कमाल दी गल, दोनों गल्लां करतियां। और इस गल नूं गुरु नानक साहब ही समझा सके दृढ़ करके कि हक मारन वाला भी पापी है। हक पराया नानका उस सूअर उस गाय, गुरपीर हामा तां भरे। एक पासे तुसी
गुरु वाल तुरे हो कि साडा पांडा गुरु है, ब्राह्मण गुरु है। एक पासे तुसी पीर वासे तुरे हो कि साडा खुदा पीर है। तुहाडा गुरु ते तुहाडा पीर तुहाडे वल मुख तां करेगा जद तुहाडे अंदर सच्ची मुच्ची दूसरियां दा हक ना खाण वाली सच वाली बिरती आएगी। इनू क्या है, उस सूअर उस गाय गुर पीर हामा, हामा कहते हामी भरना, मुँह करना कि हाँ तू मेरा है। सच्चा मुसलमान वो है मुसलमान मोम दिल होवै, अंतर कीमल अंतर धोवै। ते हिंदू का भी जिक्र किया कि असल हिंदू असल सनाती असल पंडित होवै जिहड़े अपने मन नूं प्रबोधे, अपने मन नूं सोधे। इस करके गुरु नानक साहब की आमद गंग बरारस हिंदुआ मुसलमाना मक्का काबा ते गुरु नानक साहब नूं किथे किथे गाया गया। कहंदे घर घर बाबा गाविया बज्जण ताल मृदंग रबाबा, इसलिए गुरु नानक लई ते आए। बनारस विच भी गुरु नानक नूं गाया गया। घरां घरां विच भी जिहड़े लोकी जनेऊ पाउंदे सी वो भी गुरु नानक साहब नूं गाउण लग गए, ते जिहड़े अल्लाह अल्लाह बोलदे सी, सुन्नत कराउंदे सी, खुदा खुदा करदे सी, वो भी गुरु नानक साहब नूं गाउण लग गए। कोई छोटी गल नहीं सी। भाई गुरदास करके कहते कि इस करके असी गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने ये वजन नाल कहा कि गुरु सब तो पहला गुरु नानक लई ते आए, क्योंकि गंग बनारस हिंदुआ जिहड़े हिंदू सन वो भी गुरु नानक साहब नूं गाउण लग गए, ते जिहड़े मक्के वल जांदे सी वो भी गुरु नानक साहब अगे सिजदा करन लग गए। भावें वो काजी रुकनदीन है, काजी जीवन है, भावें हमजा गौस है, ते भावें हिंदुआं दे विच कलयुग पांडा है, भावें कोई भावें सज्जन है, भावें वो सब सिजदा करन लग गए। घर घर बाबा गावी है वज्जण ताल मृदंग रबाबा। क्यों गुरु नानक साहब नूं ते आउणा है? अगला बचन भाई गुरदास जी करते हैं, कहते भगत वछल होए आया। गुरु नानक साहब भगती भगत के तत्ते नूं सिहारी है, भगती करन वालियां नूं सीने नाल लाउण वास्ते आए ने। जिहड़े भगती करन वास्ते इत्थे दृढ़ ने, जिहड़े करना चाहुंदे ने जात पात तो उत्ते उठ के, फिर गुरु नानक साहब उन्होंने भगती करन विच आउण वालियां विघनां नूं रोक के उन्होंने भगती दा सोमा देगा, उन्होंने भगती दृढ़ कराएगा। सारी धरती ते उन्हां दी भगती दी तूती बोलेगी जिहड़ी भगती करदे ने। क्योंकि अज तो पहलां भगती करन वाले जिहड़े नीवीं जात दे सन उन्होंने मार कुट के खत्म कर दिता जांदा सी, उन्हां दी भगती कबूल नहीं सी, उन्होंने उठण नहीं दिता जांदा सी समाज दे विच। भावें एक भगती करन वाला भी वो भी भावें भगवान नूं मनदा है, भावें वो राम बोलदा है, भावें हर बोलदा है, ते एक ब्राह्मण भी जिहड़ा वो भी राम बोलदा है, वो भी हरि बोलदा है, वेदां नूं मनदा है, पर वो नीवीं जात दा जिहड़ा भगती कर रहा है। ते मैं उच्ची जात दा कि नीवीं जात वाले दा नाम मेरे तो उच्चा किवें हो जाएगा? मैं तो उच्ची जात दा ब्राह्मण हाँ। भगत वछल होए आया, अगे जिक्र किया पतित उदाहरण अजब अजाबा। कहंदे इस रूप च पतिता नूं उधार गए गुरु नानक साहब, जिहदे बारे कदी कोई सोच ही नहीं सकदा सी। बंदियां नूं तल के खाण वाला बंदियां दे पैरां 'च सिर रखण लग गया। लोकां दे नाल लोकां नूं छुरियां दे नाल वड्डण वाला अपने सीने नूं, अपने मन नूं, अपने कुफरां नूं वड्ड के दुनिया दी सेवा विच लग गया। हुण भगत वछल की है? गुरु नानक साहब भगत वछल ने, जिहड़े भगती नूं प्यार करदे ने। गुरु नानक साहब कहंदे कोई भी होए, कोई भी होए इस धरती ते, भावें नीवीं जात वाला भी होए, जे वो उच्ची जात वाला भगती करे तो बहुत चंगा, पर जे नीवीं जात वाला भगती कर ले, गुरु नानक साहब कहंदे फिर मैं अपने चम की जुत्ती उहदे पैरां 'च पवा दांगा। ये भी गुरु नानक साहब, क्योंकि कबीर साहब का भी असीं बचन पढ़ते हैं, पर गुरु नानक साहब ने भी इहदा जिक्र किया कि जिहड़ा सनात जात होए आया। महाराज जी कहंदे सनात दे विच भगती करदा, नीवीं जात क्या? महाराज कहंदे उहदे उन्होंने पैरां की जुत्ती मैं अपने चम की बना के देवांगा। तो यही तो गुरु नानक साहब गुरु नानक लई ते आए, इसलिए क्योंकि जिथे जिथे गुरु नानक साहब गए ने उथे उथे भगती करन वालियां दी पैज रखी है, उथे उथे भगती करन वालियां नूं सीने ते लाया है। भाओ तेरा भांग खलड़ी मेरा चीत, मैं दीवाना भया अतीत, कर कासा दर्शन की भूख, मैं दर मांगो नीता नीत, तो दर्शन की करो समाए, मैं दर मांगत भीखिया पाए। मैं लैण आया। दुनिया के लोग कहते गुरु नानक साहब तुसी खतरी ते ओ शूदर, एक खतरी शूदरां दा बूआ खड़का रहा, ये ठीक नहीं कर रहे। महाराज कहते
असल दे विच बीमारी तुहाडे मन दे अंदर है, मानसिकता दी है, उहदे अंदर रब दी बंदगी है। ते जिहदे अंदर रब दी बंदगी आ जाए, केसर कुसुम मिर्गमय हरना, सर्ब शरीरी चरना चलना, सर्ब शरीरी चढ़ना, चंदन भगतां जोत इनेही सर्वे परमल करना। कहंदे तुसी कहंदे हो नीवीं जात दा केसर, केसर नूं तुसी देखिया कित्थों आउंदा है? किदे किदे हत्थ लगदे ने, किहड़े किहड़े मक्खियां ते किहड़ियां किहड़ियां उहनूं हनी भी आके झूठा करदियां होणगियां। झूठा झूठ है, केसर कदी झूठ नहीं होया। कुसम, कुसम कहंदे है फुल्लां नूं, फुੱਲ ते कहंदे पहले ही बिटर गए ने, वो तो सुचे हो ही नहीं सकते। मिर्ग में, मिर्ग दे अंदर जिहड़ी कस्तूरी है वो तो चम विचों आई है, वो तो हिरण दे विचों कड्डी गई है, हिरण नूं मार के। ते तुसी कहंदे हो असीं वैष्णो, ते ओहदी जिहड़ी निकली हुई कस्तूरी है उहदियां खुशबूआं बढ़दियां ने। ते हरना सोना, ते सोने की कदी कीमत घटी है? किसी सुनियार ने यह कह के सोना सस्ता बेचिया कि आह वाले गहने मैं सस्ते वक्रे रखे हुए है। क्यों बई ये कोई सोना घट है, ये विच दूसरा तत्त ज़्यादा है? कहते नहीं नहीं नहीं, इसलिए सस्ता बेच रहा क्योंकि इन्हें नीवीं जात वाली औरत ने पाया से। इस धरती ते किथे कोई सुनियारे की ऐसी दुकान हट्टी नहीं है जिथे सुनियारा सोना ये वेच कह के वेचदा होए सस्ता कि इन्हें नीवीं जात वाले ने पाया होया सी। नहीं, जिस तरह केसर कदी मैला नहीं होंदा, फुल्लां नूं कदी तुसी सुच पिट नहीं मन्नी, मिर्ग में कस्तूरी जिहड़ी हिरन दे ढिड विचों सीने विचों पाड़ के कड्डी है, हरना सोने की कीमत कदी नहीं घटी, सर्ब शरीरी चढ़दा सारियां लई बराबर है। देव वालियां दे विच ते देवतियां नूं भी तुसी पाउंदे हो, तुसी ते अपने इष्ट नूं भी सोना पाउंदे हो, इनूं बुरा ना मन्नियो। गुरु नानक साहब ने कहा कि केसर कुसुम मिर्ग में हरना, सर्ब शरीरी चढ़ना, चंदन भगतां जोत इनेही सर्वे परमल करना। चंदन के रुख दे ते दुआले सप लिपटे होंदे आ, वो तो जहर दे विच घिरिया होंदा है। चंदन भगतां जोत इनेही सर्वे परमल करना। अगे कहंदे घे पट भांडा कहे ना कोई। कदी ये तो नहीं कहा कि घ्यो झूठा हो गया। वो भाई गां मझ नूं ते पहलां उहदा बच्चा उहदे थणा नूं झूठा कर दिंदा ते फिर दुध कढ़िया जांदा है। ये तो जिहड़ा घ्यो तुसी वरतदे हो, ये तो एक पशु की चर्बी है। इनू कदी तुसी सुच पिट दे विच नहीं कहा कि ये मैली होगी, ये माड़ी होगी। सारे यगां दे विच कोई यग देसी घ्यो तो बिना हो नहीं सकता, कोई दीवा घ्यो तो बिना बल नहीं सकता। गुरु नानक साहब कहंदे तुसी उन्हां दी सुच पिट करदे हो जिन्हां नूं तुसी जातां विच वंडता, पर जिहड़ियां चीज़ां तुसी धर्मशाला विच वरतदे हो मैनूं दसो। कहंदे दूध तां बछड़े थनों बिटारे हो, ते बाणी दे विच जिक्र आया कि घ्यो कदी वो मैला नहीं समझा। पट कहंदे रेशम सब तो पवित्र मनदे हो, रेशम तो निकलदा ही कीड़े विचों है, उहदी सुच पिट नहीं हुई, जिहड़ा आंदा ही कीड़े विचों है, किरम विचों निकल के आउंदा है। महाराज कहंदे घे पट भांडा कहे ना कोई। ऐसा भगत ते जिहड़ा भांडा तुसी मिट्टी दा वरतदे हो, ये भांडा बनदा कित्थों है? गुरु नानक साहब कहंदे कब्रस्ताना विचों मिट्टी पट के जद घुमियार उहनूं भट्ठी च तपाउंदा है ते तां जाके, जे उहनूं कहो नहीं जी नहीं ये भांडा साडा बनाउणा है, ये फलानी मिट्टी दा लैके इधरों मिट्टी तो लैके बना दे, ते घुमियार कहेगा मैनूं पता है मेरा भांडा किवें बनना, जे बना दांगा ते कल नूं तिड़क जाएगा। कहते उस भांडे की सुच पिट नहीं है जिहड़ा भांडा कब्रस्तान की मिट्टी तो कट पट के इहदा जिक्र किया। मिट्टी मुसलमान की पेड़ा पई घुमियार, घड़ भांडे इट्टां कियां जल्दी करे पुकार। महाराज कहते इहदी सुच पिट कोई नहीं, पर तुहानूं उहदी सुच पिट होगी जिहड़े नीवीं जात वाले ने बंदगी कर ली। इस करके प्रभु का नाम जपदियां नीवीं जात वाले भी उत्तम पदवी पाउंदे हैं। ये बाणी का नेम निर्णा है, नीच जात हर जपतियां उत्तम पदवी पाए। यह है भगत वछल होए आया। गुरु नानक साहब भगत वछल ने, भगती करने वालियां नूं सीने नाल लाउण वाले ने। केसर कुसुम मिर्ग में हरना, सर्ब शरीरी चढ़ना, चंदन भगतां जोत ने ही सर्व एक परमल करना। घ्यो कदी मैला ते क्या नहीं, रेशम कीड़े विचों आया मैला क्या नहीं, भांडा कदी मैला क्या नहीं। तुसी सतगुरु जी कहंदे ये सारियां गल्लां ते तुहानूं मैलियां नहीं लगियां, पर वो मैला लग गया जिहदे अंदर रब दा नाम टिक गया। ये दसो। महाराज कहंदे मैनूं इहदी दलील दिओ।
के पट भांडा कह ना कोई, ऐसा भगत वर्ण में होए। ये है भगत जिन्हों कोई जात पिट की मैल नहीं लग सकती, बंदगी नूं किसी समाजिक जात की, किसी सो कॉल्ड वर्ण वंड की मैल नहीं लग सकती। तेरे नाम निवे रहे लिव लाए, नानक तिन दर भीखिया पाए। जिन्हां दे अंदर बंदगी आई है, गुरु नानक साहब उन्हां दे दर ते खप्पर लैके वो बंदगी भगती लैन आया। यह है भगत वचल। जे गुरु नानक साहब ना जाते कबीर साहब दे, जे ना जाते रविदास जी दे, जे ना पीपे नूं लैके आउंदे राजस्थान की धरती तो, जे भगत सूरदास, ये वो सूरदास कई होए ने, जे भगत नामदेव नूं नहीं, देखो किन्ना सतगुरु जी ने बख्शिश की। ते कल्ले भगत वछल नहीं है जिन्हों पिंडां दे लोकां ने दुरकार के पापी आख के पिंड तो बाहर सुट दिता, बाहर करता, जिन्हों बिना किसी ने पूछया उहदे शरीर ते सिर तो पैरां तक कोड़ दी बीमारी लग गई। जे पिंड वाले कदी तरस भी खांदे ते कुत्तियां दी तरह, कुत्ते बिल्लियां दी तरह उन्होंने रोटी पा के जांदे सन, ते दुर दुर करके कहते सन कि पिंड की सरदल ते भी तेरा परछावां नहीं पैना चाहिए। ते गुरु नानक साहब सारा पिंड छड्ड के उहदी खुरली विच, उहदी कुटिया विच जाके उहदा बूहा खड़काउंदे आ। ते वो अगों कहंदा, जजमान कौन, तुहानूं किसी ने दसिया नहीं कि मेरे सरदल मेरे घर दे दरवाजे तक आना भी मना है। गुरु नानक साहब कहंदे क्यों, कहंदे मैं सिर तो लैके पैरां तक कोड़ विच मड़िया पिया, मैं हाय हाय चीस पुकार कर रहा। ये पिंड दे लोकां ने मैनू पापी कह के कोड़ी आके धक्के मार के बाहर कढ़िया। ते कहंदे गुरु नानक साहब जी जो भी हो तुसी अतिथि अंदर ना आयो, मैं बीमार हाँ। ते गुरु नानक साहब कहंदे भलिया बीमार तू नहीं, बीमार इन्हां पिंडां दी लोकां दी मानसिकता है। ये बीमार मानसिकता है। इस बीमार मानसिकता नूं गुरु साहब कहंदे इनू, इस बीमार मानसिकता नूं ठीक करना है कि चार पैसे किसी को वध आ गए, जे कोई रोगी आ जाए तो उन्होंने चक के तुसी बाहर मारोगे, जे कोई नीवी जात वाला आ गया उस तो तुसी वितकरा करोगे। महाराज जी ने फिर शब्द उचारिया, जियो तपत है बारो बार, ये है भगत वछल होए आया। एक कर्म किया गुरु नानक साहब ने इस धरती के लोगों ते, इस करके गुरु नानक लई ध्याए। एक बचन है भावें अद्धी तुक है गुरु नानक लई ध्याए, पर ये विच कितना कुछ लुकिया होया गुरु प्यारे। कि गुरु नानक साहब कहते तू रोगी नहीं है, रोगी ये पिंडां दे लोग ने, पिंडां दी मानसिकता इन्हां लोकां दी, जिन्हां ने वितकरा किया, जिन्हां नूं तरस नहीं आया, जिन्हां दे मन दे विच ये भाव नहीं पैदा होया। इनू साहिब जी कहते सारे जपो जियो तपत है बारो बार, कहते सिर दा सड़दा बारंग बार सड़दा, तप तप खपै बहुत बेकार, तेरा नहीं, तू ते भावें तन करके तराहे तराहे कर रहा है, पर सच ये है कि मन ते हिरदे करके ये सारे सड़ते पे ने लोग, ये अंदरों साड़े राख होए पे ने। जियो तपत है बारो बार, तप तप खपै बहुत बेकार, जैतन बाणी विसर जाए, ज्यों पक्का रोगी बिल लाए। तू कला शरीर करके विलकदा है, ये रब तो सारे विछड़े हुए ने, रब की दया इन्हां विच नहीं है। ये अज भी विलकणगे तो रब की दरगाह विच भी विलकणगे, ये इत्थे भी विलकणगे तो सच्ची दरगाह दे विच दवेड़े वेले भी ये विलकणगे, क्योंकि इन्हां दे तन विच गुरु का उपदेश, बाणी का मतलब सच्चा उपदेश रब का। जैतन बाणी विसर जाए, ज्यों पक्का रोगी बिल लाए, बहुता बोलन झखण होए, विण बोलै जाणै सब सोए। जेता मोह प्रीत स्वाद सब्बा कालख, दागा दाग अपनियां दे नाल मोह कर लिया ते दूजियां नूं वितकरा करके धक्के मार दिते। महाराज कहंदे ये रोग है, ये अग है, ये नहीं। दया भी आनी चाहिए सिख दे अंदर। एक बचन जे गुरु का सिख बोले गुरु नानक लई ते आए, ते सिर तो लैके पैरां तक चनचनाहट छिड़ जाए गुरु नानक साहब जी के जीवन की। क्यों गुरु नानक साहब नूं ध्याया जाए? क्योंकि गुरु नानक साहब ने ये कहा सी कि दुनिया दे बंदिओ जे को डूबै फिर होवै सार। रब दे उत्ते पूर्ण विश्वास करियो। जद सारे हीले खत्म हो जाण ना, तेनू पिंडां वालियां ने चक के बाहर सुट्टा, कोई हीला नहीं, कुत्तियां दी तरह तेनू रोटी पाई, तू रब नूं चेते कीता ते रब तेनू बचाउण वास्ते भी आ जाता। फिर रब नहीं तू तेनू इत्थे निरोआ कीता ते सारी धरती नूं तेरे राही उपदेश दिता। यह है भगत वछल। मलक भागो कहंदा मेरे कोल आओ प्रशादा छको, पर गुरु नानक साहब ते कैसा कारा कर रहे ने।
कल भी ये जिक्र ये बचन असी विचारिया सी कि सतगुरु नानक साहब जी जेड़े इस पार ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म कलयुग अंदर एक वरताया, कोई रुखां नूं, कोई जनोरां नूं, कोई कुत्ते बिल्लियां नूं, कोई किसी नूं पूज रहा, कोई सूरज नूं, कोई चंद्रमा नूं, कोई किसी नूं तिलक ला लिया। गुरु नानक साहब कहते जे पूजा करनी है तो एक वाहिगुरु दी करो। इस करके गुरु नानक लई ध्याए, छड्डो ये वहम भरम, बाहर निकलो इस बीमार मानसिकता तो। पार ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म कलयुग अंदर एक वरताया तो फिर उल्टा खेल पिरम का। कहते कमाल है, केड़ा खेल? कहता पैरी पवना जग वरताया। कहते भाई लालो दे अगे मलक भागो दा सिर झुकाता। जिहड़ा मलक भागो अहंकार दे विच तणिया पिया सी कि मेरे घर आके 36 प्रकार के भोजन क्यों नहीं खाते गुरु नानक साहब ने। भाई मलक भागो दे नहीं, भाई लालो दे टिके ते भाई लालो दे पैरां विच मलक भागो दा सिर झुकाया। ये है गुरु नानक लई ध्याए, ये है कला गुरु नानक साहब दी कि उल्टा खेल पिरम का। कि इत्थे चेला चेला रहिंदा सी, उस्ताद गुरु गुरु रहिंदा सी, पर सतगुरु गुरु नानक साहब ने लैणे नूं अपना आप बना के ते लैणे नूं अंगद कर दिता। यह है पैरी पवना जग वरताया। जगत दे विच जे सालस राय जौहरी दे घर पटने जांदे है ते घर जाण तो पहला शर्त ये रखते ने, सालस राय जौहरी तू पहला अपने नौकर दे पैरां ते मत्था टेकेगा तो फिर मैं तेनू ये बख्शिश देवांगा। क्यों? अहंकार भनना सी, मान भड़ना सी। इस करके गुरु नानक साहब भगत वछल ने, जेड़े बंदगी करने वाले ने, रब दे भाव विच रहने वाले ने। गुरु नानक उन्होंने सीने नाल लाउण आया। कोई धरती की ताकत नहीं, भावें 100 साल हुज्जत कर ले, दुनिया की जीवन की ताकत उन्हां नाल, संसार समय की ताकत, पर 101 सालवा चढ़ेगा तो गुरु नानक साहब उन्होंने पैरां 'च रोलेगा तो बंदगी करने वालियां नूं सिर ते चढ़ाएगा, उन्हां दे सिर ते। ये रब दी, ये गुरु नानक साहब की कला है। इस करके गुरु नानक साहब कहते वो भाव तो ताइयों इत्थों शुरू किया सी। हक पराया नानका उस सूअर उस गाए, ते गुर पीर गुरु नानक साहब गुरु भी ने ते पीर भी ने। इस करके ये लफ्ज़ दोनों लिए वरत्या कि गंग बनारस हिंदुआं, गुरु हिंदुआं दा, मुसलमाना मक्का काबा, पीर मुसलमाना दा। इस करके ये दोनों लफ्ज़ ढुकते ने कि गुर पीर हामा तां भरे जां मुरदार ना खाए। कि असी कहने जी असी मांस नहीं खाते, असी जी वैष्णु है, पर गुरु नानक साहब कहते वैष्णु ते तू तां बनेगा जद किसी का हक भी नहीं खाएगा। तू जे किसी दे नाल बदीकी करी जा रहा, गरीबां उपर जे खिंजा दाड़ी, पार ब्रह्म सा अगन में साड़ी। महाराज कहते अगन विच सड़ेगा। ये भी याद रखी, सतगुरु जी ने स्पष्ट किया, भावें ये सुलही ते सुलभी खान वास्ते, पर स्पष्ट ते ये लफ्ज़ ने ना गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी दे। भगत वछल होए आया, भगती नूं प्यार करने वाला आया। गोबिंद 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 संग नाम दियो मन लीना, आड़ दाम को छीपरो होयो लाखीना। तनना बुनना त्याग कै प्रीत चरण कबीरा, नीच कुला जोलाहरा भयो गुणी गहीरा। रविदास ढवंता ढोर नीत तिन त्यागी माया, की होया हिरदे वसिया पार ब्रह्म। कहते वो गिणिया गया, प्रगट हुआ साध संग भगतां मह गणिया। फिर उस तो बाद सैन नाई बुतकारिया वो घर घर सुनिया, की होया कहते उहदे अंदर हिरदे च हिरदे वसिया पार ब्रह्म भगतां मह गणिया। यह विद सुन के जाटरो उठ भगती लागा, मिलै परतख गुसाइयां धन्ना वड भागा। ये कोई भगत जी का उच्चारण किया शब्द नहीं है, ये शब्द गुरु अर्जुन साहब जी का उच्चारण किया होया है। भगत वछल गुरु नानक साहब भगत वछल लई आए ने, जिहड़े इत्थे भगती नूं प्यार करते हैं, रब नूं प्यार करते हैं, सच्ची भगती विच जुड़े ने, उन्होंने सीने नाल लाण आए ने। जिन्होंने मंदिरां तो चक के बाहर कढ़िया, मोको तू ना विसार तू ना विसार तू ना विसारे रामैया। गुरु नानक साहब ने उन्होंने ऐसी थां बख्श दी जिस थां ते वो भी सिर झुकाउणगे, उन्हां दीआं पुश्तां भी सिर झुकाउणगियां जिन्हां ने नामदेव नूं मंदिर तो बाहर चकिया सी, वो भी सिर झुकाउणगे। महाराज कहते इस गल नूं याद रखियो। तो अगला बचन भाई गुरदास जी, क्योंकि इसका जिन्ना विस्तार करिए गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच कोई अंत नहीं है। भगत वछल होए आया, हर जुग जुग पैज हर जुग जुग भगत उपाया पैज रखदा आया। राम राजे हर नाकश दुष्ट हर मारिया, प्रहलाद तराया भगत वछल होए आया। अगला है पतित उदाहरण अजब अजाबा।
पतित नूं उधारण वाले ने गुरु नानक साहब, पर अजब अजाबा है ऐसे पतित उधारे जिहड़े अज तक किसी ने सोचे ही नहीं। कोई किसी का मुकाबला नहीं कर सकिया। पतित नूं उधारण वास्ते पतित उधारण सतगुर मेरा, मोहे तिसका परवासा, बख्श ले सब सच्चे साहिब, सुन नानक की अरदासा। इस करके गुरु नानक लिए ध्याए कि वह जिन्हों गुरु नानक आप बख्श देन, उन्होंने कोई नहीं हरा सकता, उन्होंने कोई खत्म नहीं कर सकता। अगला बचन है पतित उदाहरण अजब अजाबा। पतित नूं उधारिया गुरु नानक साहब ने, जेड़े मुनकर होए बंदगी करन वाले भी रब तो सतगुरु जी ने उन्होंने भी उधारिया। जे ओंकार ईश्वर इंदौर तो कई 100 मील 100-150 मील दूर एक मंदिर है जिसका नाम है ओंकार ईश्वर, जे उथे पंडित विकार दे विच भैड़े कर्मा कांडां दे विच दुनिया नूं पागल बना रहा सी, ते महाराज उस पतित नूं उदाहरण गए। दखणी ओंकार रामकली दखणी ओंकार रहाओ दी तुक, क्योंकि शुरुआत की थी ओंकार ब्रह्मा उत्पत्त, ओंकार किया जिन चित, ओंकार सैल युग भये, ओंकार वेद निर्मय। सुन पांडे क्या लिखो जंजाला, लिख राम नाम गुरमुख गोपाला। की तू पट्टी उत्ते रब दा नाम ओम पाउना, असल ते गल तां होए जे ओम तेरे हिरदे ते लिखिया जाए, जे ओंकार तेरे हिरदे च लिखिया जाए। लिख राम नाम रब दा नाम हिरदे च लिख। पतित उदाहरण अजब अजाबा, अजब रूप दे विच उधार के गए पतितां नूं, जिहड़े सूरज नूं पानी पाउंदे है गुरु नानक साहब खेतां नूं पाउण लग गए। पतित उदाहरण अजब अजाबा, जिहड़ी छोटियां आरतियां करदे ने जी आरती, गुरु नानक साहब पतित उदाहरण अजब अजाबा। गगन में थाल रव चंद दीपक बने, तारिका मंडल जनक मोती। जिहड़े कारी कड्डै, जिहड़ी कारी कड्ड के बह गए कि जी इहदे उत्ते किसी का परछावां ना पए, मैं उच्ची जात वाला वो नीवीं जात वाला। महाराज कहते कारी कड्डे क्या थी है कि लकीरां खिंचण नाल की होएगा, ते जिहड़ा गोहा ते लकड़ी तू लई बैठा, गोहा अते लकड़ी अंदर कीड़ा होए, जेते दाने अन के जियां बाज ना कोई, पहला पानी जियो है जित हरिया सब कोई। इस करके सूतक बाहरों नहीं आउंदा, सूतक ते भिट ये बाहर दी नहीं है कि कोई औरत घर दे विच नूंह राणी जे वो प्रैगनेंट हो गई है, जे वो एक्सपैक्टेड हो गई है, तो फिर उन्होंने चुल्हे चौके ते नहीं बैण देना। पतित उदाहरण अजब उजाबा नहीं, ये विकारां नूं खत्म करो कि तग ना इंद्री तग ना नारी, भलके थुक पवै नित दाड़ी। तग ना पैरी तग ना हथी, इत्थे तग नहीं पाया। कहंदे तग ना जेबा तग ना अखी, कहंदे जिथे तग पाउणा सी उत्थे पाया नहीं। हत्थां पैरां तो पाप कर रहे हो, अखां तो विकार वेख रहे हो, जुबान तो कबोल बोल रहे हो। महाराज कहंदे जिथे तग पाउणा सी उत्थे तग पाया नहीं, ते बाहर दा तग पा के विखावा कीता, भावें वो सिख ही क्यों ना होए। यह है पतित उदाहरण अजब अजाबा। ये कोई उधार सकदा सी? ये सूतक नहीं है कि बंदा बंदे नूं झूठ सुच दे विच मन्ने कि नहीं जी ये सूतक। महाराज कहंदे मन का सूतक लोभ है, पतित उदाहरण अजब अजाबा। तेरे अंदर वितकरा है, तेरे अंदर लालच है, ते तू उस लालच दे विच भी जे माँ बाप तो जे तू अपनियां तो औखा हो गया, अपनियां नाल धक्का कीता, फिर तेरे अंदर सूतक वरतिया। मन का सूतक लोभ है, जिहवा सूतक कूड़। जे तू अपनी जुबान तो, गुरु रामदास जी कहते ना क्या काहे पूत झगरत हों संग बाप, जहाँ तू कबोल बोलदा किसी उत्ते वधीकी करदा, इस करके सूतक तेरी जुबान ते आ गया। मन का सूतक लोभ है, जेबा सूतक कूड़, अखी सूतक वेखना, पर ग्रह पर तन रूप, कन्नी सूतक तन पवै लायत बारी खाए, नानक हंसा आदमी बद्धे जमपुर जाए। ये है पतित उदाहरण अजब अजाबा। बड़े अजब तरीके नाल गुरु नानक साहब पतितां नूं उदाहरण आए, कमाल दे उपदेश दिते सतगुरु। जो जिथे बैठा उत्थे जाके उपदेश दिते। जैनी जिथे बैठे ने, जैनियां नूं गुरु नानक साहब कहंदे किहो जा तुसी सिर खोंदे हो कि राख ला के हत्थां नूं अपने वालां नूं पटदे हो। जे इवें कोई ब्रह्म ज्ञानी बन जांदा ते चढ़दे सियालां नूं कि चढ़दे साल भेडां नूं ते भेड़ रखण वाले वारी वारी मुंनदे ने, ते फिर वो क्यों नहीं ब्रह्म ज्ञानियां हो गईयां सारियां। ये अजब अजाबा है। महाराज जी ने तर्क दे के सच्चे मार्ग दे, ये नहीं क्या जिदा जो धर्म है तुहानू मुबारक, पर हिंदू सच्चा हिंदू बने। पतित उदाहरण अजब अजाबा। मुसलमान सच्चा मुसलमान होए, पतित उदाहरण अजब अजाबा।
ਤੇ जोगी जैनी कोई भी होए वो सच्चा होए, वो विखावे वाला ना होए। ये ना होए कि 50 साल रज के लहू पीता लुकाई दा, रज के धक्का कीता ते 51 साल कहता जी मैं सन्यास लै रहा तो सारा दान दे रहा। महाराज कहते ये तेरा दिता होया दान मारन पाहे हराम मैं होए हलाल ना जाए। हराम की कमाई 50 साल कमा के 51 साल तू भावें सन्यास दे के दान दे रहा, महाराज कहते हराम हराम ही रहेगा, वो पवित्र नहीं हो सकती। पतित उदाहरण अजब अजाबा। इस करके गुरु नानक लई ध्याए एक खिन विच करोड़ां करोड़ां विश्वास लोकां जिन्हां दी विश्वास की धारणा होर सी, जिहड़े अपने पासे तुरे होए सी, एक एक शब्द दे नाल गुरु नानक साहब ने उन्हां नूं साध दिता। सत्कार दे प्यार दे विच कोई धक्का थोड़ी कीता, कोई डांग थोड़ी वराई। गुरु नानक साहब ने बस शब्द दे तीर चलाए और इन्हां तीरां दे नाल विन के रखता, सारे पाप बार कर सुटे, अखां खोल दित्तियां। कोई किस पासे तुरिया, कोई किस पासे, कोई पितरां दी पूजा करवांदा है ते गुरु नानक साहब कहंदे आ मेरे वल्लों सूई लै जा ते जेड़ा लंगर प्रशादा खराएगा, जेड़ा सारा कुछ अपने पितरां नूं पुजवाएगा, आ मेरी सूई भी भिजवा दी। वो कहंदा गुरु नानक साहब ये हो सकता है कि सूई भी पहुँच जाए। महाराज कहंदे जे सूई पहुँच नहीं सकती फिर इन्ना सारा जीवत पितर ना माने को मोया श्राद्ध कराए। ये वास्ते यह है पतित उदाहरण अजब अजाबा। जीवन का सच समझो कि तुसी बड़िया हथ दलाल के मुसवी ये करे कि अगे वस झंझाणी है, पितरी चोर करे, अपने माँ बाप नूं चोर, तू चोरी करके लियाया धन, तू धक्के नाल कमा के लियाया तो फिर तेरे मन च ख्याल आया सारे पितरां भोज करते हैं, मैं भी करावां, मैं भी चीज़ां देवां। तो फिर जिस दे घर तो चोरी करके लियाया जे सच्ची मुच्ची ब्राह्मण अगे वस्तु भेज देगा तो फिर अगे जेड़े बैठे होणगे वो तो पछाण लैणगे ये कित्थों आई। कहंदे मेरे मेरे बच्चियां ने भेजी। तो अगले जदों घर आएगी वो पछाण जाणगे, वो भलिया ये तो मेरी चीज़ है, ये तो मेरी चीज़ है। पहलां तो भांडियां ते नाम भी लिखिया जांदा सी, नवे भांडे लए जांदे सी ते भांडियां उत्ते बकायदा नाम लिखिया जांदा सी। ते गुरु नानक साहब कहंदे अगे वस्त संझाणी है, पितरी चोर करे। महाराज कहंदे हद हो गई। ये नहीं, पतित उदाहरण अजब अजाबा। मन की पवित्रता है गुरु नानक लई ध्याए। जीवन जीवन की जांच है। असी जिस कुर्सी ते बैठे हाँ, जिस कर्म नूं कर रहे हैं, कोई अफसर लगे है, कोई 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 काम कर रहा है, किसी भी, कोई IAS है, कोई IPS है, कोई क्लैरिकल दी पोस्ट कर रहा, कोई टीचर है, कोई प्रोफैसर है। जेड़ा कारज जिस कुर्सी ते बैठ के वो हौमै दे विच अपना जीवन गलतान कर रहा, गुरु नानक साहब उन्होंने पतित उदाहरण अजब अजाबा कि तू अपनी जेड़ी तेनू थां मिली सी तू उहदी गरिमा नहीं रखी, तू अपने फर्जां नूं नहीं निभाया। गुरु नानक साहब फर्जां नूं निभाउण दी गल कर रहे। सतगुरु जी ये पतित उदाहरण अजब अजाबे की गल कर रहे कि बई जेड़ा बंदा अपना काम ना करे तरीके नाल ते वो दलीलां दे। कमाल की गल लिखी सी जी अब्दुल कलाम ने, जेड़ा राष्ट्रपति साडे देश का होया। कहंदे तुसी अपनी जॉब नूं सिर झुकाओ, तुहानूं किसी अगे सिर झुकाउण दी लोड़ नहीं पैणी। किड्डी कमाल की गल है। वही गुरु नानक साहब का उपदेश। तुसी अपने कर्म नूं सिर झुका लो, जिहड़ा तुहानूं कर्म रब ने बख्शिया, तो तुहानूं किसी अगे सिर झुकाउण दी लोड़ नहीं पैणी। यही तो गुरु नानक साहब का है पतित उदाहरण अजब अजाबा। जिहड़ा कर्म असी करते हैं तो असी सदा थोड़ी रहना कि असी सानूं ये चीज़ मिल गया तो असी सब कुछ कर सकते हैं, करांगे नहीं। गुरु नानक साहब कहते भलिओ शेख हयाती जग ना कोई थिर रहा। बाबा शेख फरीद जी का बचन, जिस आसन हम बैठे केते बैस गया। पतित उदाहरण अजब अजाबा। बड़े अजब तरीके नाल गुरु नानक साहब ने उपदेश दिता। इस उपदेश नूं जे दृढ़ करिए तो कमाल है, कमाल है। इक्को गल गुरु नानक साहब ने की कि धन जोबन दोए वैरी होए, जिनी रखे रंग लाए, पतित करन वाला ही धन ते जोबन का अहंकार है। दूतां नूं फरमाया लै चले पत गवाए। क्यों ध्याईए गुरु नानक साहब नूं? इसलिए ध्याईए कि गुरु नानक साहब ने आप आख्या हों ढाडी बेकार कारै लाया, रात देह के वार धुरों फरमाया, ढाडी सच्चा महल खसम बुलाया। गुरु नानक साहब की इस गल नूं सुनियो। गुरु नानक साहब कहंदे असानू वाहिगुरू ने अपनी दरगाह विच सदिया सी, जिन्हों असी वेई नदी का साखीकार वेई नदी का इतिहास भी कहिंदे, किस्सा भी कहिंदे।
पर इहदा जिक्र गुरु नानक साहब ने अपनी बाणी विच कीता। ढाडी सच्चा महल खसम बुलाया, कहते वाहिगुरु ने मैनू अपनी दरगाह महल च बुलाया सी ते 3 बचन कीते सन। 3 बचन इसलिए गुरु नानक लई ते आए है। 3 बचन कीते सन। पहला बचन कीता गुरु नानक मैं पार ब्रह्म परमेश्वर तू गुर परमेश्वर, पहला बचन। दूसरा बचन कीता जिस ऊपर मेरी नज़र उस ऊपर तेरी नज़र, ते तीसरा बचन कीता जिस ऊपर मेरा करम नानक जी उस ऊपर तेरा करम। ये 3 बचन ते गुरु नानक साहब ने उस दरगाह च ही उचारिया सी। सो दर केहा सो घर केहा जित बह सर्व संभाले, ये है ढाडी सच्चे महल खसम। तो फिर जब गुरु नानक साहब जोगियां नूं तारण वास्ते गए, सतगुरु जी ने कि बाबा देखा ध्यान तर जलती सब पृथ्वी दिसे आई, बाजो गुरु गुबार है करती सुनी लुकाई, बाबे भेष बनाया उदासी की रीत चलाई चढ़िया सोधन धरत लुकाई। इसलिए गुरु नानक लई ते आए है। ये अरदास का पहला बचन है। ते गुरु नानक साहब फिर गुरु नानक साहब जब जोगियां दे कोल गए कि सिद्धां दे कोल जब सतगुरु जी तुरे ने कि जब सतगुरु जी ने चौ चक्कां वल दा सफ़र किया, सुमेर पर्वत पहुँचे ने, फिर 84 सिद्ध गोरखाद, फिर जाए चढ़िया सुमेर पर, सिद्ध मंडली दृष्टि आई 84 सिद्ध गोरखाद, मन अंतर गणती वरताई। ये मन दे विच हैरान हो गए सिद्धि कि ये किवें आ गया। बाला बाला बच्चा क्या गुरु नानक साहब नूं, ये बालड़ा जा कित्थों पहुँच गया साडियां थावां ते, इहनूं किहने दसता साडा राह, इत्थे ते कोई आ ही नहीं सकदा। कहते 84 सिद्ध गोरख आद मन अंतर गणती वरताई, आखण सिद्ध सुन बालिया कौन वस्त तोहे इत्थे ले आई, केड़ी करामात है तेरे कोल। गुरु नानक साहब नूं बाला आके कहते कौन ले आया। महाराज कहते सुनो फिर मेरे कोल की है। हाँ जपिया परमेश्वरो भौ भगत संग ताड़ी लाई, रब दा नाम सब तो वड्डी करामात है। इस करके गुरु नानक लई ते आया है, किसी वहमा भरमा च नहीं पाया, किसी रिधियां सिद्धियां च नहीं पाया। हाँ जपिया परमेश्वरो भौ भगत संग ताड़ी लाई, सिद्ध आखण सुन बालिया अपना नाव तुम देहो बताई। तो गुरु नानक साहब ने आख्या कि सुनो फिर, कहते इस धरती ते आए ते हाँ पर नानक नाम जपे गत पाई। नानक कला नानक नहीं, जिथे नानक है उथे रब दा नाम दा जाप भी है। इस करके रब ने धुरों भेजे है कि गुरु नानक साहब ने बचन किया कि गुरु नानक साहब कहते सुन, सिद्धा नूं कहा सुनो, पर सिद्धा ने फिर जतन किया। सिद्धि मने विचारिया किवें दर्शन ए लेवे बाला, ऐसा जोगी कली में अमरे पंथ करे उजियारा। कमाल दा है, कमाल है। साड़ियाँ रिधियां सिद्धियां फिकियां पातियां, साडा जब तक फिका पाता। एक एक बचन खप्पर देता जाओ कि पानी भर के लियाओ, जाओ अगे जिथों गुरु नानक साहब जिस छप्पड़ च सुमेर पर्वत उत्ते मान सरोवर पानी भरन गए तो वह सरोवर हीरिया मोतियां दा भर दिता। तो सोचा सी कि हुण हीरे मोती लैके गां ही तुर जाणगे ये, पर गुरु नानक साहब किथे, कौन सतगुर अगम अगाध पुरख, केड़ा झले गुरु दी झाला। केड़ा चल सकता गुरु नानक साहब की चाल, कोई नहीं चल सकता, बड़े बड़े सिद्ध नहीं चले। इस करके गुरु नानक लई ते आए है। सतगुर अगम अगाध पुरख, केड़ा चले गुरु दी झाला। ते सतगुर कहंदे मारिया सिक्का जगत विच की तो सू अपना पंथ निराला। शुक्र करो गुरु नानक साहब दा कि गुरु नानक साहब हैगे सन ते असी जोगी नहीं बने, नहीं तो जोगी बन जाना सी। गुरु नानक साहब ने कीतो उस पंथ निराला कीता कि गृहस्थ दा जीवन दिता। ये भी आख्या कि जोगी जी तुसी कांजी पाती है दुध दे विच पाड़ दिता है, मत तुहाडी कुचज्जी हो गई है। गुरु नानक लई ते आए नूं किवें किवें बयान करिए। गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी दे विचों ते समा समाप्ति वाला हर दो आलम नून नानक। भाई नंद लाल जी कहते जब तुसी नानक लिखोगे ना, लिखियो कागज़ के उत्ते नानक, कदी लिखियो नानक। एक नन्ना फिर कन्ना फिर नन्ना ते कक्का, वो कहते वो उर्दू विच लिखते हैं। कहते नानक जद मैं पाउना तो 2 नून आउंदे, नून कहते नन्ना, 2 बारी ना वरत्या जाता है। कहते वो ना मैनू किन्ने कमाल के लिखते हैं। कहते मैनू इउं दिसदा कि इकल्ले नून ना नन्ने नहीं हैगे,
एक नायम है, एक नसीर है। एक नानक दे अंदर पहला नन्ना नियामतां देण वाला है। आखो तां सही धन गुरु नानक। ये नानक, ये गुरु नानक इसलिए गुरु नानक लिए ध्याए। पहला नन्ना नायम कि हर दो नून नाम नानक। नून का मतलब नन्ने, दो नून पैंदे है। पहला जिहड़ा नून है नायम, नियामतां देण वाला। जिस नीच को कोई ना जाने, नाम जपत ओ चौकुंठ माने। जाके निकट ना आवे कोई, सगल सृष्ट ऊहा कै चरण मल धोई। जियो तपत है बारो बार वाला जिहड़ा शब्द विचारे। जै तन बाणी विसर जाए, जियो पक्का रोगी। इस करके गुरु नानक लिए ध्याए। नियामतां दी बख्शिश है गुरु नानक साहब। हर दो नून नाम नानक नायम व नसीर। नसीर कहंदा जिहदियां सारियां पासों बाहां छुट जाण ना, जिन्हों लगे ना हुण कोई हीला नहीं है, बस फिर उस वेले गुरु नानक दे चरणां 'च अरदास करी। गुरु नानक साहब दा नून दूसरा नन्ना ये नसीर नूं बयान करता है। ये डिग्गियां होयां दी बांह फड़न वाला है। ये तितकारियां होयां नूं बादशाहियां देण वाला है। ये जिन्हों कोई भी नहीं गलवकड़ी लाउंदा। भगत वछल होए आया, पतित उदाहरण अजब अजाबा। इस तो अगले जिहड़े बचन ने भाई गुरदास जी दे लिखे हुए, वो थोड़े जे कल नूं बयान करांगे। फिर अगे गुरु अंगद साहब जी की बख्शिश लैणे तो अंगद, क्योंकि ये सारा इतिहास सिख जगत का गुरु साहिबाना का 1469 तो लैके 1708 तक ये अरदास का पहला पदा समो के बैठा होया। सो सतगुरु जी बख्शिश करन। भाई डल्ला आया सी सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब को। सतगुरु जी तंबू सन ते सतगुरु जी ने आवाज़ मारी, वे डलिया। ते बाहरों जोगी लंघदा सी ते कहंदा सी, ना डल्ला ना मल्ला, गुरु गोबिंद सिंह कल्ला। ते गुरु गोबिंद सिंह जी ने अंदरों आवाज़ मारी, डल्ला ना मल्ला, गुरु गोबिंद सिंह नाल अल्लाह। ते वो की कारण सी? वो कारण सी, वह प्रगटियो मर्द अगंबड़ा वरियाम अकेला, वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुरचेला। वो अमृत की दात भाई डल्ले ने कहा, गुरु गोबिंद सिंह जी चरणा च पीढ़ी जिन्नी थां दे दो, पीढ़ी जिन्नी थां। गुरु गोबिंद सिंह साहब ने कहा, खंडे बाटे की पहल छकेगा तो थां मिलनी है, खंडे बाटे की पहल तो बिना थां नहीं मिलनी। गुरु गोबिंद सिंह साहब खालसा सिरजन तो पहला रवाल सर की धरती तक गए। शाम के दीवाना च महाराज जी की बाणी चल रही है, नाल इतिहास भी करांगे इहदा विस्तार कि जिहड़े उत्थे पहाड़ी राजे सन वो कहंदे सन साडे लई वखरा बाटा तैयार करो, साडे लई वखरी तुसीं तैयार करो पहल, असीं छकांगे। महाराज कहंदे इत्थे वखरे की गल नहीं, इत्थे सब नूं एक बनाउणा है। एक दे विच ही जिहड़ा पार ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म कलयुग अंदर एक वरताया, एक वरताउण की खेड है, खालसे की खेड। असीं कहंदे हां जी साडे तो अमृत सांभिया नहीं जाना। वो भलिओ असीं अमृत सामण की औकात नहीं रखते। अमृत ने साडे जीवन नूं सामना है, गुरु साहब ने सामना है। आउण वाली 12 तरीक नूं खंडे बाटे की पहल छको, सतगुरु वाले बनो, जहाजे चढ़ो, सतगुरु जी कृपा करन। भुलां चुकां दी खिमा है जी। फतेह बुलाओ आखो जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। राम कली महला तीजा, आनंद एक ओंकार। सतगुरु प्रसाद अनंत भया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया। सतगुरता पाया सहज सेती, मन वजियां बधाइयां। राग रतन परवार परियां, शब्द गावण आईयां। शब्दों तगावो हरि के राम मन जिनी बसाया। कह नानक आनंद हुआ, सतगुरु मैं पाया। ये मन मेरिया तू सदा रो हर नाले, हर नाल रहो तुम मन मेरे दूस विसारना। अंगीकारो करे तेरा कारज सब सुबारना। सबना गल्लां समरथ सुआमी, सो क्यों मनो विसारे। कह नानक मन मेरे सदा रो हर नाले। साचे साहिबा क्या नहीं करती रह, करता तेरा सब किछ है जिस दे सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे। नाम जिनका मन वसिया वाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे
ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰਾ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਸੋਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਪਰਸ਼ਾਨ ਸੁਖ ਮਨੈ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟੋਂ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਵਾਜੀ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੀ ਕਲਾ ਜਿਤ ਘਰ ਧਾਰਿਆ। ਪੰਜ ਦੂਤ ਦਿਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕਉ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਦਸ ਖੋਆ ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਬੜ ਭਾਗਿਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਵਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਿਰਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਗੁਰੂ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵੇ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੁਰੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ। ਦਿਸਰਾ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਚੰਗਿਆਈਆ ਬੁਰਿਆਈਆ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੀ ਨੇੜਾ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਖੇਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲ।